Hello and welcome to Diya Online Science Academy. This is the first lecture of first chapter of NCERT, that is electric charges and fields. In this particular chapter, we will be covering these many points: electric charges, Coulombian force, electric field, dipoles, electric flux, Gauss's law, electrostatic potential, then energy and capacitors. Barabar? So first, in this first chapter, if you go through your NCERT textbook, what will you find is first and second, both the chapters are actually covered under one particular topic, that is called as electrostatics, right? So in first chapter, till Gauss's law, the points have been covered, and the rest of the points have been covered in the second chapter. Okay, so now in today's lecture, we will just be focusing on electric charges and what are its properties, how a body can be charged, that we are going to see. So I have mentioned one term that is called as electrostatics. This chapter is covered under this particular topic, that is electrostatics. So what does this mean? Electrostatics, what does it mean? So by the name itself, it is very clear that it is something related to electric, something related to some positive, negative charges, and that should be stationary. So here in this particular topic, charges are considered as stationary, steady. If you consider that the charges are moving, then there will be another topic that you will have to go through, right? That topic is electrodynamics, and electric current and electromagnetic induction, magnetism will get covered into that part, right? So here in first and second chapter, charges are considered as steady only. Now I am talking about charges again and again I am saying charges. So what are these charges that we will have to see first? So what are these? Electric charges. So there is something called as charge that was not known earlier, right? The thing that was been known was just the mass. This electric charge is what? It is actually intrinsic property. Intrinsic property of the matter. Intrinsic, that means fundamental. That if you want to describe charge, you don't need to explain any other quantity. See, I am talking about intrinsic property, fundamental property, not the fundamental units or fundamental quantities, right? Fundamental quantities were those 7 which we had studied in standard 9th as well as in 11th. This is fundamental property, right? So when there was just an idea about another fundamental quantity, another fundamental property, that was mass. So due to mass, whatever is the thing happening around that part, around that body was known. जैसे कि मैंने लिया कि मास है किसी बॉडी के पास, सपोज दिस बॉडी इज हैविंग मास m1 let's say, and another body is having mass m2. So we know that इनके बीच में जो फोर्स लगेगा that will be of gravitation type. इनके बीच का distance if I take r, then the gravitational force being exerted by each of them on another body is equals to g m1 m2 upon r square. ठीक है, ये 9th and 11th के अंदर हम लोग देख चुके हैं, राइट? अब इसके ऊपर से सपोज यहाँ पर लिया था कोई ये 2 पार्टिकल्स ले लिए, मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसके थ्रू इस फॉर्मूला के अंदर पुट करने से जो आंसर आना चाहिए था वो आंसर नहीं आता था. वैल्यू वाइज फोर्स जो है वो उतना नहीं आता था.
बराबर। लेट्स से कुछ भी एफ आ गया उस टाइम पे। मोर ओवर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्टिव ही लगेगा। कोई भी बॉडी ले लो, अगर उसका मास हम कंसीडर करते हैं, देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर। वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होता कि सरफेस के ऊपर है और अर्थ ने ग्रेविटेशन दिया तो ग्रेविटेशन की वजह से हम ऊपर उड़ गए, ऐसे नहीं होता है ना, करेक्ट। ग्रेविटेशन की वजह से वो अट्रैक्ट ही करता है, तो इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर। अब इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें पता है कि चार्जेस जो है ना, वो चार्जेस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ चार्जेस? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दो टाइप्स होते हैं। सो व्हेन टू चार्जेस विच आर ऑफ सिमिलर पोलैरिटी, नेगेटिव नेगेटिव लिया, तो उनके बीच कैसा फोर्स लगना चाहिए? कैसा फोर्स लगता था? फोर्स तो लगा रिपल्सिव काइंड ऑफ, रिपल्सिव टाइप का फोर्स लगा। और वैल्यू भी थी जो वो इतनी एफ जी जितनी नहीं थी, कुछ एफ थी, बराबर। इधर कुछ ये एफ मिलता था, ये कैसा था? ये इतना एफ जी आना चाहिए, बराबर। अब मिल रहा है एफ विच इज रिपल्सिव इन नेचर, ऐसा मिला। तो इसके ऊपर से पता चला कि टिल नाउ हम बॉडी के ऊपर जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी खाली मास स्टडी करते हैं, उसके अलावा भी कोई और प्रॉपर्टी होनी चाहिए विच अल्टर्स दिस फोर्स, और उसके नेचर को भी अल्टर कर देता है। देखो अभी कोई दो मैं बॉडी ले लेती हूं, कुछ भी, ये ब्लॉक ले लिया, बराबर, दो कोई भी जाने चीज ले ली। अब इनके बीच यहां से मैं किसी को, ये जो है इधर से कोई एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, दूसरा कोई होगा ऐसे फोर्स लगा रहा है, और कोई यहाँ पर बीच में से फोर्स जो है वो ऐसे लगा रहा है, बराबर। वो बाहर की तरफ धक्का लगा रहा है और जो दो है वो अंदर की तरफ धक्का लगा रहे हैं। तो रिजल्टेंट हमें क्या दिखेगा इसका? अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? तो अब इसमें सपोज के ये वाला जो फोर्स है जो अंदर की तरफ धक्का लगा रहे हैं, इफ दैट फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स, ये F1 में बोल दूं, F1 लगा रहे हैं और ये F2 लगा रहे हैं, तो अगर ये F2 जो है उससे F1 ग्रेटर हुआ तो हमें इफेक्ट किसकी दिखेगी? इसकी दिखेगी, मतलब दोनों पास में आएंगे, ठीक है। अगर उल्टा होता तो ये रिपल्स होता, मतलब कि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जो है, अगर इस केस की बात करें तो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव में से ये जो है वो वीक होगा इसकी कंपैरिजन में। That is why as a result you don't see any attractive kind of force, बराबर। attractive force उस टाइम पे नहीं दिखा, मतलब कि ये उसके ऊपर हावी हो गया होगा, उसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू ये ज्यादा होगी, बराबर। तो अब रिकॉल करो, 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो थे वो देखे थे हमने, बराबर। 4 फंडामेंटल फोर्सेस में वीकेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्स कौन सा था? ग्रेविटेशन था, बराबर। वीकेस्ट, अगर नहीं भी याद है तो ये याद रख लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट वन, करेक्ट। तो ये वीक है तो ऑब्वियसली उससे दूसरा फोर्स जो है वो तो हायर ही होने वाला है। अब बात रहेगी खाली मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड हम लोग बाद में देखेंगे। अभी क्या पता चला कि वी जस्ट डोंट हैव टू कंसीडर अबाउट वन फंडामेंटल क्वांटिटी ओनली विच इज मास, वी हैव टू आइडेंटिफाई सम अदर फंडामेंटल क्वांटिटी ऑल्सो, अदर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑल्सो, और फिर उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में ये डिफरेंस भी इधर से ही पता चल जाता है कि ड्यू टू मास ये दो जो फोर्सेस लगेंगे दैट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर, ड्यू टू चार्ज वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं एंड रिपल्सिव भी हो सकते हैं। सपोज ऑपोजिट पोलैरिटी ले ली, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि रिपल्सिव ही होगा कि अट्रैक्टिव ही होगा, ठीक है। तो ये वो चीज हो गई। अब इसके अंदर जो चार्ज है, ये चार्ज
उसमें कौन सा चार्ज जो है, क्या चार्ज जो होगा, जिसके बारे में पता चला, तो सबसे पहले जो आइडेंटिफाई हुआ ना वो तो क्या था, E/m का रेशियो आइडेंटिफाई हुआ, बराबर। E/m का रेशियो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन और उसके मास का रेशियो, E/m, ये रेशियो आइडेंटिफाई हुआ। देन आफ्टर, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करते गए, देन आफ्टर पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज, सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन था, बराबर। सो इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is the smallest independent charge. This only can exist independently. Smallest independently existing charge है, ठीक है। अब 11th स्टैंडर्ड के अंदर या कहीं कोई बुक के अंदर या कहीं पर भी पढ़ लिया होगा बाय मिस्टेक, बराबर। तो उसमें क्या देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज फर्दर मेड अप ऑफ व्हाट, क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन्स, वो किससे बने हुए हैं, फर्दर क्वार्क्स से बने हुए हैं, बराबर ना। पहले क्या पता था कि ये मॉलिक्यूल तक पहुंचे, फिर एटम तक पहुंचे, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद आगे पता चला कि दिस इज नॉट द एंड, वो आगे फर्दर किससे बने हैं, क्वार्क्स से बने हुए हैं। तो दो टाइप के क्वार्क्स हैं। क्वार्क्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज अप क्वार्क एंड द अदर इज डाउन क्वार्क। अप क्वार्क दैट मीन्स it is having charge equals to 2/3 electron, and down quark that means it is having charge equals to -1/3 electron. तो अब देखो यहाँ पर तो दिखाया कि ये क्वार्क जो है उसके ऊपर चार्ज है, तो ये तो हो गया, ये स्मॉलेस्ट कैसे हुआ, ये इससे भी छोटा, बराबर ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन किसी से बना हुआ है, अप डाउन क्वार्क यहाँ पर, तो ये नहीं हुआ छोटा, इससे स्मॉलेस्ट कैसे बना ये इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये वर्ड जो है उसको ध्यान में रखना है, स्मॉलेस्ट बट इंडिपेंडेंट चार्ज। क्वार्क जो है ना, वो क्वार्क अकेला अप क्वार्क कहीं पर नहीं रह सकता, अकेला डाउन क्वार्क कहीं पर नहीं रह सकता, वो जोड़ी बना के ग्रुप में ही रहता है। जोड़ी बना के कुछ कॉम्बिनेशन करके इलेक्ट्रॉन बना के रहेगा, जोड़ी बना के कुछ करके वो प्रोटॉन बना के रहेगा, बराबर। सो ये ध्यान में रखना, जब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीज खास ध्यान में रखनी है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज एंड इट्स वैल्यू इज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर की चार्ज की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नाउ अब मैंने बताया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस होते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज negative charge and charge on proton is considered as positive charge, 1.6 into 10⁻⁻19 plus. Unit of the charge is coulomb. ये टाइप्स हो गई, ये हो गया उसका यूनिट, coulomb, COULOMB। अगर मुझे स्मॉल में पूरा नाम लिखना है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, एंड इसके अंदर C जो है उसको स्मॉल रखना है। बट एज अ नोटेशन इफ आई वॉन्ट टू राइट देन आई राइट कैपिटल C। ये यूनिट्स की जो यूनिट्स के लिए रूल्स है यूनिट्स लिखने के, उसके ऊपर से, बराबर। कि कूलम जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, तो अगर वो आपको लिखना है देन ऑल द लेटर शुड बी इन स्मॉलर केस, बराबर। और अगर खाली नोटेशन लिखना है देन द फर्स्ट लेटर शुड बी अ कैपिटल वन, राइट। तो ये कूलम्ब हो गया इसका यूनिट, कूलम्ब। नाउ एक में मैंने लिखा माइनस, एक में लिखा प्लस। तो मैथ्स हमने पढ़ा है, तो मैथ्स के ऊपर से हमें क्या पता चलता है कि माइनस मतलब कम और प्लस मतलब ज्यादा, बराबर। बट इसमें जो माइनस एंड प्लस दिखाया ना, दैट इज नॉट एक्चुअली
showing me more value and less value, right? This is just the nature के इस नेचर के टाइप को नेगेटिव बोलेंगे, इस टाइप के नेचर को पॉजिटिव बोलेंगे. When charges have been identified के चार्ज जैसी कोई चीज होती है, उस टाइम पे दे हैड कंसीडर्ड के इलेक्ट्रॉन के टाइप का जो भी चार्ज होगा उसको नेगेटिव लेंगे, बराबर. इसलिए उसको उसके टाइप के सारे चार्जेस को नेगेटिव नेगेटिव आज तक मानते आ रहे हैं, सो एज टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी. एंड सिमिलरली फॉर द प्रोटॉन्स, उसको सारे को पॉजिटिव जो है वो कंसीडर करेंगे. इफ एट दैट टाइम इट हैज बीन कंसीडर्ड, इट वुड हैव बीन कंसीडर्ड के वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है उसको पॉजिटिव कंसीडर करना चालू किया होता, तो आज की डेट में हम लोग इलेक्ट्रॉन टाइप के जो भी चार्जेस होते उसको हम लोग पॉजिटिव लेते होंगे और प्रोटॉन जो है उसको सारे को नेगेटिव ले रहे होते, बराबर. सो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर माइनस और प्लस को मोर और लेस के हिसाब से देखने की जरूरत नहीं है, वो एक कैटेगरी खाली शो कर रहे हैं, नेगेटिव पोलैरिटी एंड पॉजिटिव पोलैरिटी. नाउ अब हमने बताया कि अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, राइट? ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एग्जिस्ट करते हैं. तो क्या कॉम्बिनेशन होगा जिससे वो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा जिससे वो न्यूट्रॉन बनाएगा? तो चलो वो कॉम्बिनेशन लेते हैं और उससे देखते हैं क्या बन रहा है. सपोज आई एम टेकिंग एन two up quarks and a down quark. What do I get? Up quark, that means plus 2/3 electron, plus 2/3 electron and a minus 1/3 electron. That means ये हो गया 2 plus 2 minus 1, that is equals to 4 minus 1 3, 3/3 1. तो ये हो गया, मेरे पास आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज बनने के लिए I need to have this combination of quarks. 2 up quarks and a down quark will form an electron. Correct? अब एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं, UDD. 2 down and an up quark. तो देखो यहाँ पर up quark, that means 2/3 electron, then minus 1/3 electron, minus 1/3 electron. 2 minus 1 minus 1, that is 0. So no charge will be there. Which subatomic particle is not having any charge? Neutron, right? So this is the structure of neutron. 2 down quark and an up quark will together form a neutron, right? So chalo, note this down. Now we will go through some properties related to charges, right? When we are dealing with the charges, we need to know what are the properties contained by these charges. So properties of charges. So the first property says additivity of charge. Additivity of charge, that means okay, suppose there is a body on which number of charges are being dumped on that, बराबर. कि इधर से Q1 चार्ज आया, यहाँ से Q2 चार्ज आया, इधर से माइनस Q3 चार्ज आया, बहुत सारे चार्जेस आते हैं. तो क्या होगा कि ये Q1 जो है वो Q1 क्या एक जगह पर कहीं पर यहाँ पर होगा, Q2 जो है वो इधर रहेगा, Q3 जो है वो इधर रहेगा. क्या ऐसे होगा? तो बोल रहे हैं नहीं. चार्ज हैज अ प्रॉपर्टी कि जब वो एक बॉडी के ऊपर आ जाएगा तब वो एल्जेब्रिक समेशन जितना टोटल चार्ज वो बॉडी के ऊपर शो करता है, राइट? व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू डू एल्जेब्रिक एडिशन. Total charge on a body, total charge on a body is equal to the algebraic addition of
ऑल द चार्जेस। मतलब अब इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, Q टोटल अगर मैं बोलूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3। दिस इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक एडिशन। उनकी जो प्लस माइनस साइन होगी उसके साथ आपको लेना है, करेक्ट। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड इज वेरी इजी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। साइंस पढ़ रहे हैं तब से कंजर्वेशन वर्ड के रिलेटेड तो कोई भी लॉ बना सकते हैं, बराबर ना। कंजर्वेशन दैट मीन्स some quantity is going to remain the same, it is going to remain the constant, right। constant charge रहेगा। अब कब constant charge रहेगा, when the body, कुछ भी यूनिवर्स के अंदर टोटल जितना भी चार्ज होगा ना वो न्यू ऐड नहीं होगा, या तो इट विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। चार्ज विल नाइदर, एनर्जी के अंदर देखते थे ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या पढ़ते थे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Similarly, charge can neither be created nor be destroyed. So that means the total charge of the system, total charge of an isolated system remains constant, राइट। सो सपोज के एग्जाम्पल दूँ तो कहीं पर न्यूट्रॉन है, एक सिस्टम ले ली हमने, बराबर। अब इस न्यूट्रॉन के साथ कुछ प्रोसेस हो रही है और वो कुछ दो चार्जेस के अंदर डिवाइड हो गया, बराबर। सो these two charges 1 and 2 चार्ज शुड बी सच दैट इनका एडिशन करेंगे तब भी इसके जितना ही चार्ज होना चाहिए, बराबर। मतलब कि ये एक को मैं इलेक्ट्रॉन बोल दूं तो दूसरे को मुझे पॉजिट्रॉन बोलना पड़ेगा। पॉजिट्रॉन क्या है वो अभी देखने की जरूरत नहीं है, दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन समझ लो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सी अगर आपको ऐसे लगेगा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन नहीं हुआ, तो नहीं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना वो डिफरेंट होता है। पॉजिट्रॉन जो होता है उसका मास इसके जितना ही होता है, बट पोलैरिटी जो है वो प्रोटॉन जितनी, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव जितनी होती है। दैट इज वाई दिस इज द डिफरेंट टर्म। तो ये ऐसे दो कोई पार्टिकल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो अब जब टोटल करोगे चार्ज का, आफ्टर दैट प्रोसेस हुई बट आइसोलेटेड सिस्टम है, तो चार्ज जितना पहले था उतना ही प्रोसेस के बाद होना चाहिए। तो पहले कितना चार्ज था, 0, बाद में भी कितना रहेगा, 0, राइट। सो दिस इज हाउ द चार्ज हैज गॉट कंजर्व्ड। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब कुछ क्वांटिटी में, कुछ क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी। तो रिकॉल करो, सबसे छोटा चार्ज कौन सा, सबसे छोटा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन, राइट। अब एक बॉडी ले ली, उस बॉडी के ऊपर से मुझे कुछ चार्ज जो है बाय सम फिनोमेना, इफ आई वांट टू रिमूव द चार्ज, तो चार्ज रिमूव करूंगी मतलब क्या होगा, इससे मैं सबसे पहले एक कुछ उखाड़ के निकाल दिया, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। मतलब कितने जाएंगे, मुझे हाफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो, हाफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन में से सपोज के मुझे खाली अप क्वार्क निकालना हो तो इज इट पॉसिबल, नो, बिकॉज वी हैव सेड के क्वार्क्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सबसे छोटा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग तो कौन, इलेक्ट्रॉन। तो निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। अगर डिपॉजिट करना है आएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर मैं लिखूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इधर उसके हिसाब से आया हुआ चार्ज। सो सपोज 1 इलेक्ट्रॉन आया तो ई चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 2e आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स आया तो उसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज आया। सपोज
n इलेक्ट्रॉन्स हैव कम, तो Ne चार्ज जो है वो आया होगा उसके ऊपर, राइट. सो ऑन एनी बॉडी total charge will be equals to multiple integral of E, smallest fundamental charge, उसके जितना होगा, where n equals to 1 2 3 and so on. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान में रखना. इसके ऊपर से छोटे छोटे एमसीक्यू है ना वो बनते हैं इसके ऊपर से भी, और एडिटिविटी जो है वो भी आप लोगों को यूज करना रहेगा. डायरेक्टली कुछ नहीं पूछेंगे कि इसके ऊपर 2 कूलम्ब और -3 है तो टोटल चार्ज कितना. ये देखने के बाद फिर आगे जो दूसरे फिनोमेना होंगे वो अप्लाई करने रहेंगे, राइट. और 2 मार्कर के अंदर कभी कभी ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, थियोरी के अंदर पूछनी हो तो पूछ सकते हैं. अदरवाइज दिस इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ द अबाउट द चार्जेस, राइट. चलो नोट डाउन कर लो इसको. नाउ वी विल सी इफ अ बॉडी इज इट कैन बी चार्ज्ड, मतलब उसके ऊपर कुछ चार्ज जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं. अभी बताया ना हमने कि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ जाएंगे या इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो पाएंगे. तो कैसे हम लोग वो जो है वो चार्जिंग वो कैरी आउट कर सकते हैं उस प्रोसेस को. सो देर आर 2 मेथड्स of charging a body. Charging a body by conduction. ठीक है, कंडक्शन क्या है वो पता है. कंडक्शन मतलब कि हीट ट्रांसफर के अंदर भी देखा है ना, कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू वो जो क्वांटिटी है जो जिस भी बारे में बात कर रहे हैं दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, राइट. सो हियर चार्जेस विल गेट ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट. अब ये आपने देखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिक्स के अंदर, बराबर, कि आप प्लास्टिक चेयर के ऊपर बैठे हैं, बराबर, थोड़ी देर बैठोगे, ये वो हिलोगे डुलोगे, फिर अचानक से आप अर्थ के कांटेक्ट में नहीं हो और अचानक से कोई आप को आके टच करता है, देन यू विल एक्सपीरियंस सम स्पार्क, बराबर, कुछ स्पार्क होगा आपके और अदर पर्सन की बॉडी के बीच में. तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं वो चार्जिंग बाय कंडक्शन हुआ. मतलब आप और वो प्लास्टिक की चेयर, उनके बीच में क्या हो गया, रबिंग हुआ, कंटिन्यूअस रबिंग हुआ. ड्यू टू दैट रबिंग थोड़ा चार्ज जो है वो प्लास्टिक से आपके ऊपर, आपसे प्लास्टिक के ऊपर कुछ ट्रांसफर हो गया. नाउ द बॉडी हैज बिकम चार्ज्ड बॉडी. अब वो चार्ज बॉडी के साथ कोई अनदर बॉडी जो अर्थ के कांटेक्ट में है वो आएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो रिलीज हो जाएगा वहां से, बराबर, अर्थिंग के थ्रू वो अर्थ के अंदर जाने की कोशिश करेगा. तो इसीलिए वो जो स्पार्क है वो होता है, बराबर. तो चार्जिंग किसी के भी ऊपर बाय कंडक्शन मेथड करना है तो उसके लिए यू हैव टू ब्रिंग द बॉडी इन डायरेक्ट कांटेक्ट बाय bringing bodies in direct contact, correct. now direct contact मतलब क्या करेंगे, उसके बीच में कुछ फ्रिक्शन जैसा. आपने हेयर अगर कॉम किए हैं तो उसमें भी कभी होता है कि हेयर कॉम करते हैं, प्लास्टिक का कॉम होता है, तो फिर उसके बाद फिर आप उसको हेयर के पास लाएंगे या पीस ऑफ पेपर के पास लाएंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होते हैं, राइट. ये सब चीज़ों के अंदर क्या हुआ, वो हमने चार्जिंग कर दिया, जो प्लास्टिक कॉम था उसका चार्जिंग कर दिया. अब वो चार्जिंग की वजह से दूसरा जो बॉडी होगा ना वो उसको अट्रैक्ट या ऐसे कर पाएगा, राइट. अब ये सब चीज़ें जो है ना उनमें ये बहुत पहले से, बहुत मतलब बहुत 600 BC के टाइम से ग्रीक लोग जो थे ना उनको ये चीज़ें पता थी, मतलब बहुत जगह पर पता थी, बट वो एक्चुअली इस चीज़ों का यूज़ जो है वो यूज़ भी करते थे, राइट. तो द बॉडी, इनमें क्या होगा एक्चुअली, एक बॉडी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी. सो द बॉडी विच loses electrons becomes
positively charged, positively charged, and the other body which gains electron, एक के ऊपर से दूसरे के ऊपर जाएगा, it becomes negatively charged, right? तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर ये चीज हो गई. अब इसमें आपको देखना है कि सपोज टू स्फीयर्स, मतलब तो कोई भी दो बॉडी ले लो, टू स्फीयर्स अभी हमने लिए, एंड दे आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम. तो इसमें आइडेंटिकल क्या क्या होगा? मटीरियल एंड डायमेंशंस. अब इसकी आर रेडियस ली तो दूसरे की भी आर रेडियस. आइडेंटिकल मटीरियल एंड डायमेंशन के दो अगर हम लोगों ने स्फीयर्स लिए, सपोज इनिशियली दिस इज हैविंग चार्ज Q1 and the other body, other sphere is not having any charge, then I am separating these two. इसको सेपरेट कर दिया इधर और इधर. सेपरेट करने पर क्या होगा? इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा. सी सेकेंड बॉडी, सपोज इसको बॉडी ए एंड बॉडी बी बोल दूं, तो बॉडी बी के ऊपर पहले कुछ चार्ज था? नो, बराबर, इट वॉज चार्जलेस. उसके बाद फिर देखो तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया? Q1/2. इसके ऊपर कितना चेंज हो गया? इसके ऊपर था और है, अभी चेंज हुआ, बट इसके ऊपर नहीं था और चार्ज आ गया. दैट मीन्स वी हैव चार्ज्ड द बॉडी. चार्ज करने के लिए क्या किया हमने? दोनों को कांटेक्ट में लाया, राइट? कांटेक्ट में लाके फिर उसको हमने जो है वो सेपरेट कर दिया. अब इसके ऊपर से आपको फिर आगे फर्दर कोलंबियन फोर्स जब पढ़ेंगे, वो कोलंबियन फोर्स इसके ऊपर से फिर अप्लाई करना रहेगा कि पहले इतने सेपरेशन पे थे, तब इतना फोर्स, अब उनको साथ में लाए, फिर सेपरेट कर दिया, फिर इतना सेपरेशन, तो अब फोर्स कितना. तो जब इकट्ठे करके फिर सेपरेट करते हैं तब कितना चार्ज, ये इसके ऊपर से पता चल सकता है, बराबर. तो इसके लिए खाली ये चीज देखनी है, ये दे ही देंगे ये कंडीशन के द बॉडीज आर आइडेंटिकल, मटीरियल सेम है एंड दे आर हैविंग द सेम डायमेंशन, राइट? चलो नोट डाउन करो. Now there's another method also of charging in which we will not bring the bodies into direct contact. So that method is called as charging by induction. First was charging by conduction. This is charging by induction. So let's say what actually happens in this process. Let's say this is chargeless body. See, if I say chargeless body, that doesn't mean it doesn't have any charge. Chargeless, that means whatever is the number of positive charge, that many number of negative charges are there. So you know now the additivity of charge. Additivity में क्या होता है? सबको ऐड करना है, तो जितना प्लस है उतना ही माइनस, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? जीरो, बराबर. तो चार्जलेस बॉडी मतलब के वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेम नंबर पे है, बट है तो सही उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? तो ये एक चार्जलेस बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है. नाउ सपोज मैं इसके पास कोई एक रॉड जो है वो लेके आती हूँ विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, बराबर. तो व्हाट विल हैपन, इसके अंदर जो चार्जेस थे ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसमें से पॉजिटिव will get attracted towards this. हमने क्या इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया ना, नेगेटिव यहां पर चले जाएंगे. ये एक्चुअली हुआ क्या? आयंस बन गए, पॉजिटिव आयंस यहां पर और नेगेटिव आयंस जो है वो उस तरफ चले गए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस तरफ चले गए, बाकी क्या बचा? पॉजिटिव आयंस बचे. अब इसके आगे क्या करेंगे? ये जो है उसको बाय कीपिंग दिस, अभी चार्जिंग तो हुआ नहीं क्योंकि अगर हम लोग ऐड करके देखते हैं तो ऑन एडिंग स्टिल द टोटल चार्जेस जीरो, बराबर. तो चार्जिंग हुआ क्या? नहीं, तो चार्जिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई.
अब इसमें मैं इसको दे देती हूं इन द सेम सिचुएशन आई गिव अर्थिंग, ये अर्थिंग का सिंबल है बराबर। ये नेगेटिव जो था ना उसके पास अभी एक बड़ा सा सम्प आ गया जो हमेशा भूखा रहता है, मतलब कि अर्थ जो है वो पूरा चार्ज अपने अंदर समा लेगा, राइट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल फ्लो थ्रू दिस पाथ और वो अर्थ में चले गए। पॉजिटिव आयंस दे विल रिसाइड देयर ओनली। अब क्या होगा, इधर से अर्थिंग भी निकाल दो, ये बंदा भी चला जाएगा, तो अब जो पॉजिटिव आयंस है वो बच जाएंगे खाली, दोनों निकल गए। तो पॉजिटिव आयंस को तो इधर जगह मिल गई, सो दे विल गेट यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द बॉडी। इनिशियली इसके ऊपर कितना चार्ज था, 0, राइट, न्यूट्रल था। अब इसके पास कुछ चार्ज है, अब Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो दिस इज हाउ वी हैव चार्ज्ड द बॉडी। इसके पास अगर हम लोग पॉजिटिव वाला कोई रॉड लाते तो इसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज जो है वो भी कर सकते थे, राइट। सो नोट डाउन कर लो इस चीज को भी। So here we come to the end of the first lecture of this chapter. In the next lecture, we will be discussing about Coulombian force.